تفصیلی کہانی ہے جو قدیم ہندوستان کی سلطنت، محمد جوئی، جادو اور اخلاقی سبق پر مبنی ہے۔ بادشاہ اور گمشدہ خزانہ زمانہ قدیم کا ہے جب ہندوستان کی وسیع سرزمین پر عظیم سلطنتیں قائم تھیں۔ دریائے گنگا کی وادیوں میں جہاں سبزہ زاروں کی خوشبو ہوا میں بکھری رہتی تھی اور بلند پہاڑ آسمان کو چھوتے تھے، ایک ایسی سلطنت آباد تھی جس کا نام ویر نگر تھا۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے، دریائے گنگا سے مچھلیاں پکڑتے اور جنگلوں سے پھل اور جڑی بوٹیاں جمع کرتے تھے۔ سلطنت کے مرکز میں ایک عظیم محل تھا جو سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور اس کی میناریں دور دور تک نظر آتی تھیں۔ محل کے چاروں طرف باغات تھے جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور چشمے بہتے تھے جن کی آواز سے دل کو سکون ملتا تھا۔ ویر نگر کا حکمران تھا راجہ ویر سنگھ، ایک ایسا بادشاہ جو اپنی بہادری، انصاف پسندی اور رعایا کی محبت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ راجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، جسم مضبوط اور پھٹوں سے بھرا ہوا جیسے کوئی قدیم مجسمہ۔ اس کی آنکھیں تیز اور گہری تھیں جو ایک نظر میں انسان کے دل کی بات پڑھ لیتی تھی۔ اس کی داڑھی گھنی اور سیاہ تھی جو اس کی شان کو مزید بڑھاتی تھی۔ راجہ ویر سنگھ ایک عادل حکمران تھا۔ وہ ہر روز دربار میں بیٹھتا اور رعایا کی شکایات سنتا، غریبوں کو انصاف دیتا، امیروں سے ٹیکس لے کر ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا کیونکہ راجہ نے اناج کے گودام بنوائے تھے جو ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ لیکن ویر نگر کی سلطنت میں ایک پرانی افواہ تھی جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ یہ افواہ ایک گمشدہ خزانے کی تھی جو سلطنت کے شمال میں واقع ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں دفن تھا۔ یہ جنگل کالا جنگل کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں درخت اتنے اونچے اور گھنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی گم ہو جاتی تھی۔ جنگل میں وحشی جانور گھومتے تھے، شیر، چیتے، ہاتھی اور زہریلے سانپ۔ کہا جاتا تھا کہ یہ خزانہ قدیم زمانے کے ایک عظیم جادوگر بادشاہ تھے، مہاراجہ کالی داس کا تھا۔ مہاراجہ کالی داس ایک طاقتور جادوگر تھا جو اپنے جادو کی بدولت دور دراز کی سلطنتوں سے خزانے جمع کرتا رہا۔ اس نے سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی جواہرات اور جادوئی اشیاء اکٹھی کی جو صاحب کو لامحدود طاقت اور دولت دیتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک بڑی لڑائی میں وہ اپنے دشمنوں سے ہار گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا خزانہ کالا جنگل میں چھپا دیا اور اس پر جادوئی رکاوٹیں ڈال دیں تاکہ کوئی لالچی شخص اس تک نہ پہنچ سکے۔ افواہ تھی کہ خزانے میں ایک خاص جواہر ہے جو بیماریوں کا علاج کرتا ہے، ایک تلوار جو دشمنوں کو خود بخود شکست دیتی ہے، اور سگے جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ راجہ ویر سنگھ کو یہ افواہ بچپن سے سن کر بڑی دلچسپی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر یہ خزانہ مل جائے تو سلطنت کی خوشحالی میں اور اضافہ ہو جائے گا، رعایا کو ٹیکسوں سے نجات ملے گی، نئی سڑکیں بنائی جا سکیں گی، اسکول اور ہسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں اور غریب کسانوں کو نئی زمینیں دی جا سکیں گی۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے جب سورج کی کرنیں محل کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، راجہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ دربار میں بڑے بڑے ستون تھے جو سونے کی پٹیوں سے مزین تھے اور فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ وزراء جو رنگین پگڑیاں پہنے بیٹھے تھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ وزیر صاحب، کیا یہ گمشدہ خزانے کی بات سچ ہے؟ کیا واقعی کالا جنگل میں کوئی خزانہ دفن ہے؟ راجہ نے اپنی گونجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وزیر اعظم جو ایک بوڑھا اور تجربہ کار آدمی تھا، اس کی سفید داڑھی زمین کو چھو رہی تھی اور آنکھیں دانش سے بھری ہوئی تھی، بولا، حضور، یہ افواہ تو صدیوں پرانی ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ کئی بادشاہوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کالا جنگل خطرناک ہے، وہاں وحشی جانوروں کے علاوہ جادوئی رکاوٹیں بھی ہیں، زہریلے پودے، بھٹکتے راستے اور شاید بہت برید تھی۔ اگر آپ جائیں گے تو سلطنت کیسے چلے گی؟ دوسرے وزیر نے اضافہ کیا، حضور، یہ خزانہ لعنت زدہ ہے، جو بھی اسے لالچی میں تلاش کرتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی سلطنت کی خوشحالی پر توجہ دیں۔ لیکن راجہ ویر سنگھ کا دل نہیں مانا۔ وہ ایک بہادر آدمی تھا جس نے کئی لڑائیاں جیتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر خزانہ رعایا کی بہبود کے لیے استعمال ہو تو یہ لعنت نہیں برکت بنے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مہم جوئی پر جائے گا۔ اس نے اپنے سب سے وفادار ساتھیوں کو بلایا۔ پہلا تھا اس کا بہادر سپاہی ہری سنگھ جو تلوار بازی میں ماہر تھا۔
हरी सिंह एक नौजवान था, कद में लंबा, पुठों से भरा हुआ और उसकी आंखें जैसे शेर की। वो राजा का बचपन का दोस्त था और कई लड़ाइयों में उसके साथ खड़ा रहा था। दूसरा था दानश्वर पंडित रामचंद्र, जो कदीम किताबों और मंत्रों का आलम था। पंडित की उम्र 50 साल थी। वो एक लंबी सफेद धोती पहनता था और पेशानी पर चंदन का टीका लगाता था। उसके पास एक कदीम लाइब्रेरी थी जहाँ से वो जादू और तारीफ की बातें जानता था। तीसरा था एक नौजवान शिकारी लक्ष्मण, जो जंगल की राहों, पौधों और जानवरों से वाकिफ था। लक्ष्मण एक देहाती था जिसकी यल्द सूरज से झलस गई थी और हाथों में तीरंदाजी की महारत थी। वो जंगल में बचपन से घूमता रहा था और उसे रास्तों के राज मालूम थे। चौथा था एक खातून, राजा की बहन रानी कमला देवी, जो जादू और जुड़ी बोटियों की माहिर थी। कमला देवी खूबसूरत थी, लंबे स्याह बाल, गोरी रंगत और आंखें जो दानिश से चमकती थी। वो एक तन्हाई पसंद थी और महल के एक कोने में अपना कमरा रखती थी जहाँ जादुई किताबें और बोटियां जमा थी। वो बचपन में एक बुजुर्ग गुरु से जादू सीखती। मुहिम-जोई की तैयारी शुरू हो गई। राजा ने सल्तनत की जिम्मेदारी वजीर आजम को सौंपी। उन्होंने घोड़े तैयार किए जो मजबूत और तेज थे। हर एक ने अपना सामान बांधा। हरी सिंह ने तलवार और ढाल, पंडित ने किताबें और मंत्र, लक्ष्मण ने तेर, कमान और जड़ी बूटियां और कमला देवी ने जादुई पाउडर और जवाहरात। एक खूबसूरत सुबह, जब सूरज अभी अभी तलू हुआ था और परिंदे चहचहा रहे थे, वो चारों घोड़ों पर सवार होकर वीरनगर से निकले। राजा ने उन्हें दुआएं दी और फूल निखावर किए। रास्ता लंबा था। पहले वो दरियाई गंगा के किनारे से गुजरे जहाँ पानी की लहरें चमक रही थी और मछलियां उछल रही थी। फिर वो एक मैदान से गुजरे जहाँ घास की खुशबू आ रही थी। आखिरकार वो काला जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल का दरवाजा जैसे एक तारीख सरंग था। दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थी और पत्ते इतने घने कि रोशनी कम थी। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे पुरानी चीजों की। भाइयों, अब हिम्मत का वक्त है, राजा ने कहा। हम खजाना राया के लिए ढूंढ रहे हैं, लालची के लिए नहीं। अल्लाह हमारी मदद करे। वो अंदर दाखिल हुए। पहले दिन का सफर मुश्किल था। रास्ता तंग था, जोड़े जमीन से निकल रही थी और उन्हें ठोकर लगती थी। अचानक एक बड़ा शेर सामने आया। शेर की आंखें सुर्ख थी, दांत चमक रहे थे और गुर्राहट से जंगल गूंज उठा। इन जंगल का मुहाफिज है, लक्ष्मण ने चीख कर कहा। हरी सिंह ने अपना घोड़ा रोका और तलवार निकाली। हुजूर, पीछे हटे। वो शेर पर झपटा। शेर ने पंजा मारा, लेकिन हरी सिंह ने ढाल से बचाया। फिर उसने तलवार से शेर के पीठ पर वार किया। शेर जख्मी होकर भाग गया। सबने सांस लिया। तुमने जान बचाई हरी सिंह, राजा ने शाबाश दी। रात हुई। उन्होंने एक छोटी सी जगह पर खेमा लगाया। आसपास कीड़ों की आवाजें थीं। कमला देवी ने एक जादुई दायरा बनाया जो सांपों से बचाता था। वो बैठकर बात करने लगे। पंडित ने कहा, हुजूर, कदीम किताबों में लिखा है कि खजाना 3 आजमाइशों के बाद मिलता है। पहली ताकत की, दूसरी दानिश की, तीसरी दिल की। दूसरा दिन वो अब जंगल और गहरा हो गया। वो एक नदी के पास पहुँचे। नदी का पानी काला था और इससे जहरीली बो आ रही थी। ये जादुई नदी है, कमला देवी ने कहा। जो इसे पाएगा मर जाएगा। और लक्ष्मण ने एक पत्थर फेंका तो वो सड़ गया। पंडित रामचंद्र ने अपनी किताब खोली और एक कदीम मंत्र पढ़ा। ओम शांति शांति, पानी साफ हो जाए। मंत्र की आवाज से पानी चमक उठा और साफ हो गया। वह नदी अब वो एक पहाड़ी इलाके में पहुँचे। रास्ता चढ़ाई का था। तीसरे दिन वो एक गार के पास पहुँचे। गार का मुंह बड़ा था। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे भूतों की चीखें। ये गार खजाने की तरफ जाती है, लक्ष्मण ने कहा, लेकिन अंदर सांपों का बादशाह रहता है। राजा ने हिम्मत की और सब अंदर दाखिल हुए। अंदरूमी मलिन अंदिरात। कमला देवी ने अपने हाथ में एक जवाहर रखा और मंत्र पढ़ा। जवाहर से रोशनी निकलने लगी जैसे एक छोटा सूरज। अंदर एक बहुत बड़ा सांप था जो खजाने का मुहाफिज था। सांप की लंबाई 30 फुट थी, आंखें सुर्ख और जहर टपक रहा था। सांप ने हमला किया, लेकिन राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार से इसे लड़ा। सांप ने दम मारी, राजा गिरा लेकिन उठा और सांप के सर पर वार किया। सनमर। गार के अंदर एक कदीम पत्थर की तख्ती थी जिस पर नक्शा कंदा था। नक्शा पर लिखा था, जो दिल का साफ हो वही खजाना पा सकेगा। लालच की आग में जलने वाला कभी ना पहुंचेगा। खजाना शुमाल की तरफ 3 पहाड़ों के पीछे है। वह नक्शा लरा अब। चौथे दिन जंगल में बारिश शुरू हो गई। जमीन हुआ विसिलरट। अचानक वो एक छोटे से गांव में पहुंचे जो जंगल में छुपा हुआ था। गांव की झोंपड़ियां पत्तों से बनी थीं और लोग कदीम लिबास पहने थे।
ये लोग महाराजा कालिदास की औलाद थे जो सदियों से खजाने की हिफाजत कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। एक बूढ़ा सरदार सामने आया, इसकी दाढ़ी सफेद और हाथ में लाठी थी। तुम कौन हो जो हमारे मुकद्दस जंगल में दाखिल हुए हो? सरदार ने पूछा। राजा ने अदब से सर झुकाकर सच बताया, हम वीरनगर के राजा हैं, खजाना रियाया की बहबूद के लिए ढूंढ रहे हैं। सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, खजाना वाकई है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए 3 आजमाइशें पास करनी पड़ेंगी। पहली आजमाइश ताकत की, एक बड़ा पत्थर हटाना जो रास्ता रोक रहा है। दूसरी दानिश की, एक पहेली हल करना। तीसरी दिल की सफाई की, एक जादुई आईने में अपनी नियत देखना। राजा ने कबूल किया। पहली आजमाइश के लिए वो एक पहाड़ पर चढ़े। वह इबित बितर तैर जू इन वजनी तैर। हरी सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पसीना बहने लगा, लेकिन पत्थर हिट गया। ए उवल तैली बिजैनल। दूसरी आजमाइश थी पहेली, वो क्या है जो सुबह 4 टांगों पर चलता है, दोपहर 2 टांगों पर और शाम 3 टांगों पर? पंडित रामचंद्र ने सोचा और जवाब दिया, इंसान। बचपन में घुटने के बिल चलता है, जवानी में 2 टांगों पर, बुढ़ापे में लाठी के साथ 3 टांगों पर। सरदार खुश हुआ। तीसरी आजमाइश थी दिल की सफाई की। एक जादुई आईना था जो दिल की नियत दिखाता था। राजा आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में इसकी तस्वीर नजर आई जहां वो खजाना गरीबों में बांट रहा था, सकूल बना रहा था और रियाया को खुश देख रहा था। सरदार ने कहा, तुम पास हो गए, खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। अब वो खजाने की जगह पहुँचे जो एक बड़ी चट्टान के नीचे दफन था। उन्होंने खोदा। खजाने में सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, कीमती जवाहरात, एक जादुई तलवार जो चमक रही थी और एक जवाहर जो बीमारियां दूर करता था। लन जिसी खिज़ैन नैला इबूत नुमूदर हुआ। ये महाराजा कालिदास का भूत था जो सफेद लिबास में था और आंखें जल रही थी। तुमने खजाना पाया, भूत ने गूंजती आवाज में कहा, लेकिन ये लालच की चीज नहीं। इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, वरना ये लानत बन जाएगा। मैंने इसे छुपाया था ताकि सिर्फ साफ दिल वाला पा सके। राजा ने वादा किया, मैं इसे रियाया की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करूंगा। भूत गायब हो गया। वखुज़ैन लर वस्लो। रास्ते में कई चैलेंजेस आए, एक तूफान, एक और जानवर का हमला, लेकिन वो सबसे निपटे। वीरनगर पहुंचकर खुशी की लहर दौड़ गई। रियाया ने जश्न मनाया। राजा ने खजाना तकसीम किया, गरीबों को घर, किसानों को बीज, स्कूल और अस्पताल बनाए। जादुई जवाहर से बीमारियां दूर कीं। हरी सिंह को फौज का सरबराह, पंडित को मुशीर, लक्ष्मण को जंगल का मुहाफिज और कमला देवी को जादू की सरबराह बनाया। लन ऐनी अखतमनवत। 1 साल बाद पड़ोसी सल्तनत का लालची बादशाह, जिसका नाम था राजा करोड़ सिंह, ने खजाने की खबर सुनी और हमला कर दिया। करोड़ सिंह की फौज बड़ी थी, हजारों सिपाही, हाथी और घोड़े। वीरनगर की फौज ने मुकाबला किया। लड़ाई दरियाए गंगा के किनारे हुई। आसमान में गर्द उड़ रही थी, तलवारों की झनकार और चीखे। राजा वीर सिंह ने जादुई तलवार उठाई जो खुद बखुद दुश्मनों पर वार करती थी। एक बड़ी लड़ाई में हरी सिंह ने कई दुश्मनों को मारा, लेकिन जख्मी हो गया। कमला देवी ने जादू से एक हिफाजती दीवार बनाई। आखिरकार राजा वीर सिंह ने करोड़ सिंह को शिकस्त दी। रोर सिंबी। लड़ाई में बहुत से बहादुर सिपाही शहीद हुए, लेकिन सल्तनत महफूज रही। राजा ने शहीदों की याद में एक यादगार बनवाई। सैलजरता। राजा बूढ़ा हो गया, इसकी दाढ़ी सफेद हो गई। इसने अपने बेटे, जो नौजवान था, को सल्तनत सौंपी और कहा, बेटा, खजाना ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। इसे हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, दिल की सफाई से हुक्मरानी करो। और यूं वीरनगर की सल्तनत सदियों तक खुशहाल रही। रियाया खुश थी, जंगल अब दोस्त बन गया था और खजाने की कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खजाना दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, बहादुरी, दानिश और अच्छे अमाल में है। पुरानी जमाने की ये कहानी आज भी जिंदा है, जो हमें बताती है कि कोई भी चैलेंज ईमानदारी से जीता जा सकता है।